जैसे वो बोल रहे थे मतलब जैसे तुम्हारी की 8,000 इसलिए मतलब बोल रहे थे आप मतलब सबमिट हो गया यस Morning, sir. Good morning, sir. Am I audible to you? Yes, sir. Very much. एक प्रॉब्लम हो गई है, मेरा कैमरा ही ऑन नहीं हो रहा. Anyways. किया है नोटिस इस पे है अलग से. यस वो जैसा पता नहीं वैसे हम लोग तभी फॉरवर्ड कर पाते हैं. दीपक, आर यू विद अस? आप मेरे साथ हैं? अच्छा, कनेक्टेड हैं आप? ओके. सर्च. Am I audible to everyone? Yes, sir. Yes, sir. So our alumni is with us now. Yes, sir. Hare Krishna and good morning to one and all present here. Welcome to today's session. So today it is indeed a great pleasure to welcome amongst us the alumni of our institution and of our very own departments personnel. No, not only it is a moment of happiness for all of us, but it is also an opportunity to reflect on our learnings and achievements. Over a period of time, our alumni has been established themselves as in successful individuals in most of the field. So here we, so it is now it is the time to introduce our today's presenter, and it's a proudful moment to all of us. I mean, being a mechanical faculty, so it's alumni of mechanical department 2017 pass out, Mr. Deepak Tripathi, who
who is here currently and working as an assistant manager in Tata Steel and posted at Jamshedpur. Welcome, dear. And about Mr. Deepak, he has scored, as he discussed, he has scored perfect 100 marks in mathematics in both 10th and 12th. He was a part of Vigyan Manthan Yatra, which was Mission Excellence by MPCST Bhopal. Then he was the topper of our mechanical department throughout his UG, and he has won many PPT presentation competition held during Techno Saga. So before starting, I would like to request our dignitaries available over here. First of all, if Group Director Dr. Sarvesh Shukla sir, if he's here with us, so we would like to listen from his side. Sarvesh sir, are you there, sir? If not, then no, I don't think so. Sir is there. Sir. Okay, so now I would request to our Deputy Director, Dr. Meena Saxena, Madam. She is also heading the alumni of SGI, and she's the senior most in our SIRT. So she's having more than 15 years of experience here in SIRT itself with us. So I would like I would request ma'am to say a few words about this. Please, ma'am. Thank you, Dinesh sir. First, I would like to congratulate Dinesh sir and Tenguria sir, HOD Mechanical, for organizing such a wonderful event of connecting our alumni to our current students. And I welcome Deepak to this institute. Unfortunately, I should say on an online platform. We would love to see you offline as the pandemic gets down the pace. And yes, I remember Deepak as a very brilliant student. And, it feels so proud to see your students working and serving the nation with such a proud zeal. Apart from making your parents proud, you make us proud as an institute, as a teacher. And your words of wisdom to your juniors will not only motivate them, guide them, but also will help them. My word to the students of Mechanical Engineering Department who are attending this session is that आप बात करें दीपक सर से, आपको एक चैट का टाइम दिया जाएगा आखिरी के 10 मिनट में, आप क्वेश्चंस रेज कर सकते हैं, सर से आप कनेक्ट कर सकते हैं, एंड कुछ भी आपके मन में डाउट्स हैं जो कई बार टीचर्स के द्वारा पूरे नहीं कर सकते, वो डाउट्स अपने करियर को लेकर, ऑफिसेस को लेकर, आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है. तो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करे, I welcome you, Deepak sir, and all the students take the full advantage of this session. Thank you, sir. Over to Dinesh sir. Hello, ma'am. Has Deepak joined the session? Deepak Tripathi? Good morning, ma'am. I've joined it. Good morning. Deepak, you please start. Maybe there is some issue with Dinesh sir. You please start your session and open your video. First of all, good morning to everyone. Good morning, ma'am. And good morning, Ramchandran sir, for such an overwhelming introduction. It's been an honor to, join the institute again as an alumni.
because I've been part of SIIT for like 4 years. I've lived there. I've enjoyed each and every moment. I've learned tremendous amount of things, and SIIT has paved a path for what I am today. So, good morning to all dignitaries and good morning to all students. This session will be bilingual. I will not go in English throughout. हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स रहेगा ताकि आपको चीजें ज्यादा इफेक्टिवली समझ में आए. और डोंट थिंक दैट आई एम अ सीनियर टू यू. दोस्तों ये समझना कि ये आपके पास मौका है कि आप चीजें डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं कि इस इंडस्ट्री सिनेरियो कैसा है और क्या क्या दिक्कत है, क्या क्या चीजें आपको सामने फेस करनी पड़ेंगी और कैसे खुद को प्रिपेयर करना है. Though the topic is how to become industry ready steel manufacturing, but I have added it myths and strategies so that you can understand कि after 4 years बाहर की दुनिया आपके लिए कैसी होगी. So I'll start it. स्टार्टिंग में आपको मैं शुरुआत में थोड़ा सा स्टील मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस क्या होता है और हाउ मैकेनिकल इंजीनियरिंग नॉलेज जो आप अंडर ग्रेजुएशन में लेते हैं which will be helpful to you. उसका थोड़ा सा जीस्ट, थोड़ा सा इंट्रो, थोड़ा सा ब्रीफ बताऊंगा. बहुत टेक्निकलिटीज में नहीं जाएंगे, बिकॉज टेक्निकलिटीज में जाएंगे तो उसमें मेटलर्जी, मटेरियल साइंस, बहुत सारी चीजें आ जाती है. देन स्लोली एंड स्टेडीली आई विल मूव टुवर्ड्स द मेन टॉपिक. सो इफ यू गाइस आर रेडी, प्लीज कोई भी एक मुझे बताइए, यस बोल दीजिए, सो आई कैन स्टार्ट दैट. Yes, sir. Okay. Dinesh sir, please enable the screen sharing option. You have disabled it. Dinesh sir, are you able to hear? Just a second, Deepak, I'll ask him. Just a second. Deepak ji. Yes, Dinesh sir, please enable the screen. Yes, it is enabled, ma'am. Acha, Deepak, please check. Yeah, it's showing. I'm just sharing the screen. Is it visible to everyone? जी भैया बिल्कुल Yes, it is. Yes, sir. Yes, sir. Yes, yes. Am I clear to everyone? Yes, yes, very much, very much. You are Yes, audible. sir. ओके, तो ठीक है. देखिए आराम से चलेंगे, सारी चीजें समझते चलेंगे. बाइलिंगुअल रहेगा तो जो डाउट आपको रहेंगे यू कैन आस्क इन द बिटवीन ऑल्सो, और जो नहीं भी आपको समझ में आ रहा है, जो आपके अलग से डाउट है, आपको लास्ट में जो भी टाइम मिलेगा यू कैन आस्क इट. ठीक है, साथ में चलते हैं. बीच में कोई ये नहीं बोलना कि सर आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही है, ऑल्ट F4 दबा दीजिए, सही हो जाएगा, बिकॉज आई नो दैट. तो स्टार्ट करते हैं. See, this is my introduction, a brief introduction. मेरा नाम दीपक त्रिपाठी है. I've done my BE in mechanical engineering from SIIT, as you all know, from 2017 batch. So from college itself, I was placed in Epiroc. It's a Swedish MNC as a GET. I've worked there as a service engineer for 2.5 years. Then I moved to Tata Steel. At the very starting, I was placed at Jamshedpur. Then I was transferred for raw material location and Jharkhand itself. And there I am working as assistant manager maintenance. Deepak ji, just a moment. I want.
आप जो ये ब्लूटूथ एंड अदर सर्विस डिवाइसेस करके ये दिख रहा है, हैव यू शेयर्ड इन अ पर्टिकुलर स्लाइड और? I've shared a slide, sir. Is it not visible? No, it is not visible now. Just a second. Kindly reconnect. Is it visible now? No. No. There's some technical glitch. Just give me a second. Is it visible now? Yes, very much. Thank you. Okay. So I think is it visible now, right? Yes. All right. So this is my brief intro. My name is Deepak. I've done my BE from mechanical engineering and so and so. So I was just telling that I was placed through campus in a Swedish MNC called Epiroc. It deals with HEMM manufacturing and service industry to various mining organizations. I was posted at Hindustan Zinc Limited, or commonly known as Vedanta Group, in Udaipur, Rajasthan. Then I moved to Tata Steel as assistant manager, as I told. See, ये जो next slide है मैंने prepare किया है just a brief intro की कैसे steel manufacture होता है steel industry starting from the basic beginning और कहाँ कहाँ आपका अंडर ग्रेजुएशन का जो मैकेनिकल का जो नॉलेज है you can utilize it, right? So start करते हैं. The very first point is iron ore production in various iron ore open cast mines and coal open cast mines or underground mines. यहाँ पे क्या होता है, various HEMM are used for this process. I don't know if you guys are familiar with mining or not, but let me give a brief intro. Mining process के through जो भी आपके ores होते हैं, they are extracted, whether they are in UG mines or they are in open cast mines. और वहाँ से the ore is processed to the plant. Am I clear? Yes. Okay. So यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे HMM, that means heavy earth moving machinery, which includes dozers, dumpers, excavators, graders. बहुत सारी ऐसी मशीनरी होती है जो इन सारे कामों में यूज होती है. Now this comes under the operation maintenance profile of mechanical engineering. But this is the very first step जहाँ पे आप स्टील मैन्युफैक्चर के लिए स्टार्ट करते हैं. Now यहाँ पे आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग पोर्शन कहाँ काम आता है? सी आपने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग पढ़ा होगा या जो भी पढ़ेंगे, तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में आप लोग मल्टी सिलेंडर इंजन के बारे में पढ़ते हैं, पावर ट्रेन्स के बारे में पढ़ते हैं, इंजन के बारे में पढ़ते हैं, हाइड्रोलिक्स के बारे में पढ़ते हैं. तो अगर आपको इन सब चीजों का नॉलेज है, अगर आपने ये सब सारी चीजें आपके अंडर ग्रेड में पढ़ा है, तो एक अपर हैंड हमेशा रहता है टू अंडरस्टैंड द थिंग्स इफेक्टिवली, राइट? अगर आपको पहले से पता हो कि इंजन वर्क कैसे करता है, आपको पता हो कि फायरिंग कैसे होती है, आपको पता हो कि पावर ट्रेन में काम कैसे होता है, डिफरेंशियल कैसे काम करता है, तो जब कोई प्रॉब्लम आती है एंड बीइंग एन इंचार्ज, बीइंग एन इंजीनियर, तो आप उस प्रोसेस को, चीज को, उस सॉल्यूशन तक पहुंचने में बहुत इजी रहता है आपके लिए, अपार्ट फ्रॉम द पीपल जिनको इसके बारे में कम नॉलेज होता है. क्लियर? Yes, sir. आप लोग बायस को बायलेटरल रखिएगा ना, साथ में आप लोग बोलते रहिएगा. अगर आप रिस्पॉन्स करेंगे तो मेरे साइड से आपको चीजें बहुत अच्छी मिलेंगी. आप रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो बहुत ही पैसिव तरीके से चलता रहेगा, राइट? Okay, sir. तो यहाँ से हमने आयरन ओर को एक्सट्रैक्ट किया, ब्लास्ट करके निकाला. देन निकालने के बाद जो भी ओर रहेगा उसको डिस्पैच करना होगा टू द प्लांट. बेसिक सी चीज है, आप प्लांट तक पहुंचाएंगे नहीं तो वो पहुंचेगा कैसे? ठीक है, तो लोडिंग एंड डिस्पैचिंग ऑफ प्रोसेस्ड आउट फ्रॉम प्राइमरी प्लांट्स टू स्टील मैन्युफैक्चरिंग पार्ट, दिस इज द सेकंड स्टेप, जिसके थ्रू हम ओर को
प्राइमरी प्लांट से, जो कि आपका माइंस एरिया में ही होता है, जब उसको क्रश करते हैं और उसको स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए डिस्पैच करते हैं, ठीक है। तो अभी आप लोगों ने अपने अंडरग्रेड में जो सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में होंगे या फोर्थ ईयर में होंगे, उन्होंने कन्वेयर बेल्ट्स के बारे में पढ़ा होगा, रोलिंग मिल्स के बारे में पढ़ा होगा, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड्स के बारे में पढ़ा होगा, और अलग अलग तरीके की मेटलर्जिकल प्रोसेस के बारे में पढ़ा होगा। प्रोडक्शन में आपने पढ़ा है, थियरी ऑफ मैकेनिक्स में पढ़ा है, राइट। कन्वेयर बेल्ट याद आ रहा है किसी को? जी सर। Yes, sir. ठीक है। तो इफ यू नो कि कन्वेयर बेल्ट का काम कैसा होता है, स्लैग कैसे आता है, रोलिंग मिल्स में थ्री रोल मिल क्या होता है, 4 रोलिंग मिल्स क्या होता है, राइट। तो जब आप वहां पे इंडस्ट्री में पहुंचते हैं तो अल्टीमेटली आपके पास एक अपर हैंड होता है, यू नो, बिकॉज यू नो एवरी सिंगल थिंग। आपको जस्ट थोड़ा सा एडवांस तरीके से वहां पे चीजें सिखाई जाएगी। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो हमने आयरन ओर को अर्थ क्रस्ट से निकाल लिया है ब्लास्ट करके, देन उसको हमने लोडिंग और डिस्पैचिंग के थ्रू प्रोसेस प्लांट में भेज दिया है, स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में भेज दिया है। और थर्ड पार्ट इज सिंटर प्लांट होता है। जो सिंटर प्लांट आपका आयरन ओर फाइंस को, जो डस्ट कहलाता है, उसको अलग अलग फाइन मटेरियल के टेम्परेचर में हीट करते हैं ताकि एक ऐसा प्रोडक्ट बना सके जिसको ब्लास्ट फर्नेस में आप फेड करें। ब्लास्ट फर्नेस हम सबने पढ़ा है अपने 12th में भी और केमिस्ट्री में कि ब्लास्ट फर्नेस जो ऐसी प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हम आयरन ओर को स्टील में कन्वर्ट करते हैं, राइट। Right, sir. ठीक है। तो जो अपना सिंटर प्लांट होता है उसमें इसी तरीके से आपका छोटे छोटे स्मॉल रेगुलर नोड्यूल जो आयरन होते हैं उनको स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर मिनरल्स के साथ मिक्स करते हैं ताकि वो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू हम ब्लास्ट फर्नेस में उसको फेड कर सकें ताकि उससे स्टील मैन्युफैक्चर हो सके। द सिंगल मोस्ट पर्पस ऑफ सेंटर इज टू कन्वर्ट द ओर into steel or to make it usable for the blast furnace. Clear है? Now, what part of your mechanical engineering is helpful here? फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर से आप आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम पढ़ते हुए आते हैं, है ना? Yes, sir. Yes, sir. यूटेक्टेड पॉइंट, पेरिटेक्टिक पॉइंट, यूटेक्टोइड पॉइंट, है ना? बड़ा ही कंफ्यूजिंग सा लगता है कि ये क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या काम है। कभी कभी तो पढ़ते पढ़ते लगता है कि पता नहीं कभी लाइफ में किस काम आएगी भी कि नहीं आएगी। होता है सर? यस सर, यस सर, अभी भी राइट होता है। सर। Yes, sir. होता है सर. आप कभी भी पढ़ो, फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, इवन फोर्थ ईयर में भी हो, जब आपको आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम के बारे में पूछा जाता है तो आपको लगता है कि पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, कब पता नहीं कभी यूज भी करेंगे कि नहीं करेंगे। उसका यूज यहाँ होता है जब आपको मार्टिन साइट कैसे फॉर्म होता है, हर एक चीजों का कहाँ यूज है वो प्रॉपरली उसीलिए वो चीजें पढ़ाई जाती है। तो अगर आपको उन चीजों का नॉलेज होगा तो आपको ये सारी प्रोसेस सिंटर प्लांट में काम कैसे होता है समझने में बहुत इजी रहेगा, बिकॉज आपने वो ऑलरेडी आपके अंडरग्रेड में पढ़ लिया होगा। ठीक है ना? तो आई एम जस्ट कनेक्टिंग डॉट्स हियर, कैसे आपका अंडरग्रेड का जो नॉलेज है वो आपको इंडस्ट्री में हेल्पफुल रहेगा। क्लियर? Yes, sir. राइट, हम आगे बढ़ते हैं। ब्लास्ट फर्नेस जो होता है आपका, ब्लास्ट फर्नेस यूज टू रिड्यूस एंड कन्वर्ट आयरन ऑक्साइड जो और होता है अपना हेमेटाइट इनटू लिक्विड आयरन कॉल्ड एज हॉट मेटल। सबसे पहले वो क्या करता है, आपका आयरन ओर का जो ऑक्साइड होता है या जो ओर होता है अपना आयरन ऑक्साइड के फॉर्म में होता है, उसको लिक्विड आयरन में कन्वर्ट करता है। ठीक है। ब्लास्ट फर्नेस के बारे में हम सबने पढ़ रखा है कि द ब्लास्ट फर्नेस जो होती है ह्यूज स्टील सेक लाइन विद रिफ्रैक्टरी ब्रेक उसके अंदर लगे होते हैं और पियर शेप में होता है। पियर माने अनानास, देखा हुआ आप लोगों ने? Yes, sir. पियर शेप का होता है। ठीक है। तो हम सिंटर प्लांट के बाद जो हमारा प्रोडक्ट निकल के आता है उसको हम सीधा ब्लास्ट फर्नेस में फेड करते हैं इन स्टील प्लांट। और सिमिलर वे में आपका यहाँ भी मेटलर्जी और मटेरियल साइंस का जो भी नॉलेज होता है, रिडक्शन प्रोसेस क्या होती है, ऑक्सीडेशन क्या होती है, क्लियर है? वो सारी चीजें अगर आपकी क्लियर है तो आपको यहाँ पे चीजें समझने में बहुत ही हेल्पफुल रहता है, बहुत ईजी रहता है। तो यहाँ तक सबको क्लियर हो तो नेक्स्ट स्लाइड में चलूंगा। Yes, sir. Yes, sir. Okay. ऑलराइट। नाउ जब आयरन और हॉट मेटल में कन्वर्ट हो जाता है, नाउ द प्रोसेस कम्स हाउ टू मेक स्टील, राइट? क्योंकि अल्टीमेटली हमारा गोल स्टील बनाना है, हमारा गोल आयरन बनाना नहीं।
तो स्टील जो होता है आपका, स्टील इज मेड इन स्टील मेल्टिंग शॉप एंड रिफ्रैक्टरी लाइन वेसल कॉल्ड एलडी कन्वर्टर्स बोलते हैं उनको। एलडी कन्वर्टर्स में स्टील मैन्युफैक्चर होता है जहां पे आपको ऑक्सीजन को हॉट मेटल बाथ में पास कराया जाता है। स्टील मेकिंग जो बेसिकली प्रोसेस होता है आपका ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसमें आपको ऑक्सीजन कार्बन के साथ रिएक्ट करता है और बहुत ही लार्ज अमाउंट में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को रिलीज करता है। As you all know, carbon monoxide is a very dangerous gas. It is a poisonous gas. तो जिस भी स्टील मेकिंग प्रोसेस में जहां पर भी एलडी कन्वर्टर्स होते हैं वहां पे बहुत ही सेफ्टी के साथ काम किया जाता है। वो लोग जैसे आप अपने पीपीज इस कोविड के टाइम पे सबको पीपीज करने देखा होगा, है ना, स्पेशली अगर मैं मेडिकल फील्ड की बात करूं, दे आर कवर्ड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, देखा है ना। सर सिमिलर वे में जो भी आपका एलडी कन्वर्टर शॉप में काम करते हैं वो लोग भी टॉप टू बॉटम पीपीज में कवर होते हैं, यू नो, टू मिटिगेट द रिस्क ऑफ एक्सपोजर टुवर्ड्स द कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। यहाँ तक क्लियर चीज है? यस सर Yes, sir. यस सर नाउ द फिफ्थ पार्ट इज, जब अपना स्टील शॉप से स्टील बन के तैयार होने लगता है, ठीक है, तो स्टील को सबसे पहले सेमी फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। जो पेनल्टीमेट प्रोसेस होती है, द प्रोसेस जस्ट बिहाइंड द फाइनल प्रोसेस, उसको सेमी फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। जैसे जो बिलेट होते हैं, ब्लूम्स होते हैं, स्लैब्स होते हैं, ये भी आपने प्रोडक्शन में पढ़ रखा है सब चीजें, बिलेट, ब्लूम और स्लैब। तो इसमें पहले कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद जो सेमी फिनिश्ड गुड आपका होता है, दिस इज फेड इनटू कोल्ड रोलिंग मिल्स, जिसमें आपका लॉन्ग प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, एंड हॉट रोलिंग मिल्स जहाँ पे फ्लैट प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। और यहाँ से आपका फिनिश गुड डेवलप होता है जो सीमलेस पाइप्स के फॉर्म में, फुल रोल्ड कॉइल्स के फॉर्म में, रेल्स के फॉर्म में, बार्स के फॉर्म में हम अपने अपने कस्टमर्स को डिस्पैच करते हैं। दिस इज द फाइनल अल्टीमेट प्रोसेस, सॉरी प्रोडक्ट, जो कि कस्टमर को सेंड किया जाता है। आपने देखा होगा ट्रक्स में काफी टाइम पे जब आप कहीं जाते हैं तो ट्रक में कॉइल के फॉर्म में बहुत सारी स्टील देखा होगा आपने, रखा रहता है। किसी को याद आ रहा है? यस सर है ना, बड़े बड़े ट्रक्स में देखा होगा अपने कॉइल के फॉर्म में रहता है। वो फाइनल फिनिश्ड गुड होता है जिसको स्टील प्लांट से डिस्पैच किया जाता है टू द कस्टमर। अभी यहाँ पे आप प्रोडक्शन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं। आपने प्रोडक्शन में कास्टिंग के बारे में पढ़ा है, वेरियस फॉर्म ऑफ कास्टिंग के बारे में पढ़ा है, फोर्जिंग के बारे में पढ़ा होता है, वेल्डिंग के बारे में पढ़ा होता है, वायर ड्राइंग के बारे में पढ़ा होता है, मेटल कटिंग के बारे में पढ़ा होता है ना। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके यहाँ पर काम आते हैं। तो अल्टीमेटली मैंने समराइज ये किया यहाँ पे कि अंडरग्रेड में आप जो भी पढ़ते हैं, whether it is related to automobile, whether it is related to आपका प्रोडक्शन, whether it is related to आपका मेटलर्जी, ये सारी प्रोसेस आपकी कहीं ना कहीं आपको आपके इंडस्ट्री में काम आती ही आती है। क्लियर है? यस सर तो दिस वाज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन हाउ स्टील इज मैन्युफैक्चर्ड इन अ स्टील प्लांट। और ये सारी प्रोसेस आपकी जितने भी स्टील प्लांट इंडिया में है, whether it is टाटा स्टील, whether it is जिंदाल, whether it is सेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, whether it is अर्सलार मित्तल, कहीं पे भी आप जाएंगे तो आपको यही प्रोसेस फॉलो होते मिलेगा, बिकॉज इट इज द बेसिक प्रोसेस। मूविंग ऑन, देखिए एक मैंने आपको ब्लास्ट फर्नेस के बारे में बताया था, तो जो आपका राइट साइड में आपको जो पिक्चर शो हो रहा होगा, इट इज द ब्लास्ट फर्नेस। क्लियर है सबको? यस सर Yes, sir. तो वो इसमें ऊपर से आयरन और कोक और लाइमस्टोन को फेड करते हैं, बीच में आपको रिफ्रैक्टिव लाइंस होते हैं, इसको 1800 डिग्री सेल्सियस पे जलाया जाता है। दोनों साइड से आपको हॉट एयर ब्लास्ट दिख रहा है, आपको लास्ट में मोल्टन मेटल निकलता है जिसको आप होल के थ्रू बाहर निकालते हैं। क्लियर है? यस सर और लास्ट में मैंने समराइज किया प्रोसेस को, जो मैंने बताया आपको कैसे आपका ऊपर, अगर आपको शो हो रहा हो, वैसे काफी स्लो प्रोसेस है, ऊपर आपको शो हो रहा हो कैसे किस तरीके से ओर को मैं सेंटर प्लांट में फेड कर रहा हूँ, देन ब्लास्ट फर्नेस में आ रहा है, देन ऑक्सीजन कन्वर्टर्स है, देन बिलेट, ब्लूम और स्लैब है, देन कोल्ड रोलिंग मिल, हॉट रोलिंग मिल्स, और फाइनली आपका फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर ओके ओके ओके, यहाँ तक क्लियर है तो नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं।
Now the next thing जो आपको मैं बात करूंगा, ये आपकी दोनों चीजें बायलिटरल रहेगा, है ना, यहाँ से चीजें समझिएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। देखिए, इंडस्ट्री से रिलेटेड स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारे मिथ्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसको हम सुनते हैं, समझते हैं और यकीन कर लेते हैं, जो कि सही नहीं होती, गलत होती है, क्योंकि हमारा दिमाग उस समय चलता नहीं, हमें ज्यादा पता नहीं होता है। एकदम एक्सपीरियंस एक्सपर्ट लेवल का